Hi guys, audible? Please response. Okay. Let me see like what's the issue with the camera. Okay. 1 second. Give me 1 minute. Camera is not opening. Okay, 1 minute. Audible and visible, guys? Yeah. Sorry. The camera is not working today. Again, today new emojis. This one is coming. Okay. So poll has been done. Okay, guys. So let's share the today's agenda. Okay, screen visible, guys? Okay, it's visible. So today we are going to see problem and solution, how to define or find an actual problem, how to approach a problem, edge cases for any solution. Okay, then primitive data types, boolean, character, float, integer. Okay, these types of data type, emulated data type. Okay, then composite data types and non-composite like array, record, or we can say structure in the C++ and union. Okay, so this is a basic one that we are going to cover today. Okay, guys.
Okay, so today whatever we have completed, okay, so please tell me, like, how many of the students, okay, just go through the same things on the internet or with the help of the Google, try once again to see whatever we studied, just revise it. How many students did this? No one? कल अपन ने जो भी स्टडी करी थी, जो भी टॉपिक्स कवर किए थे, उनमें से आपने घर पर और उसको कैसे एक्सप्लोर किया और कितना किया और किस किसने किया? If yes, then thumbs up. If no, thumbs down. नहीं किया, it means okay. Anyone else? One. तो क्या, पहले तो चलो ये बताओ, आज संडे है तो मूड हो रहा है पढ़ने का? किस किस का मूड हो रहा है, किस किस का नहीं हो रहा है? और किस किस का हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है? ओके, और बताइए। और सबका हो रहा है, इट मींस बिकॉज आई गॉट ओनली 3 to 4 replies or messages in the Q&A section. Tell me. Guys, please respond. ओके, चलो देखते हैं, कुछ करते हैं। आपकी इस रिक्वेस्ट के बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ किया जाएगा। ओके, और कोई क्वेरीज है? कल जो भी अपन ने कंप्लीट किया है, और कल का जो सेशन था वो किस किस ने अटेंड किया फिर, और कैसा रहा? आई नो बिट का बाकी है, 1 or 2 days I will come back with that one. Okay, guys, कल का सेशन कैसा लगा? ऐसा कुछ जो आपको कुछ मतलब नया पता चला हो, शेयर करना चाहेंगे वो आप मेरे साथ? अच्छा पता चला, ये पहले हमको नहीं पता था। Sir, session was amazing. You converted our data into information. That's very nice. You use a topic that has been taught in the previous class. That's very nice. Good. Anyone else? No one else?
No one else there? ओके, चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं फिर गाइस. So we gonna do problems today. So we are gonna see how to solve a problem. Okay. Okay. Let's see. तो सबसे पहले तो ये बताओ, जिस स्टाइल में पढ़ाया था उसी स्टाइल में, या पहले जैसे पढ़ाते थे उस स्टाइल में पढ़ाया जाए. सुस्त हो रहे हैं आज, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है. गाइस रिप्लाई नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वे कम्युनिकेशन हो जाएगा. अपने को 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए. प्लीज रिप्लाई इन Q&A सेक्शन. Only 3 replies. Okay, 4 replies. We have 109. ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं. ओके, तो प्रॉब्लम. ओके, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज प्रॉब्लम? हाउ वी कैन डिफाइन अ प्रॉब्लम? हाउ वी कैन डिफाइन अ प्रॉब्लम? बता दो थोड़ा सा भी, प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है. Okay. Anything which is undesirable, whose solution is yet to find, anything task becoming obstacle in doing a particular task, we are not able to solve anything, where we stuck, an incomplete task. Okay. Something that is decides to us to reach us opportunity to enhance our mind that and think unique solution. Okay, got it. Okay, unfavorable situation. So see, something we need to find solution of it. Okay. Okay. So problem एक्चुअल में सिंपल लैंग्वेज में. ओके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपन जाते हैं. कुछ सिनेरियो या सिचुएशन. ओके, ऐसा कुछ या ऐसी कुछ सिचुएशन या ऐसा कुछ सिनेरियो. ओके, या कंडीशन जिसमें अपने को कंफर्ट नहीं लगता है. ओके, वन थिंग. सेकंड, अपना जो माइंड होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है.
ओके, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उसको। ओके, सेकंड पॉइंट। थर्ड थिंग, इन शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं, जैसे वन कैंडिडेट ने अपने को बोला है अनफेवरेबल सिचुएशन, वो सिचुएशन जो अपने को नहीं पसंद आ रही है। गॉट इट? वो सिचुएशन जो अपने को पसंद नहीं आ रही है उसको बोलेंगे अपन एक प्रॉब्लम। और अगर किसी एक सिंगल सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस के आगे भी हाउ लगा देंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाएगा। आगे हाउ लगा दो और पीछे क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? लर्न द कंप्यूटर साइंस और पाइथन, आगे में हाउ और एक और वर्ड लगा दो इंग्लिश को सही करने के लिए, हाउ टू लर्न द कंप्यूटर साइंस, हाउ टू स्टडी पाइथन, क्वेश्चन मार्क, दैट बिकम्स प्रॉब्लम। इसको बोलेंगे अपन प्रॉब्लम। गॉट इट? सिंपल लैंग्वेज में, विथ मी गाइस। इसके बाद प्रॉब्लम्स के टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस को मत देखो, तुम्हारी सेल्फ रोज की अगर तुम एक्टिविटीज देखोगे, ठीक है ना, और तुम्हारा रूटीन देखोगे तो वहां पर भी तुम काफी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। एग्जांपल, कॉलेज में कुछ इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो किसी भी एक रीजन के चक्कर में, तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तुमको पर्टिकुलर किसी एक कंपनी में जाना है, उसमें तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। ओके, तुम कार चलाना सीखना चाहते हो लेकिन वो तुम सीख नहीं पा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। गॉट इट मी गाइस? इस कंडीशन में, ठीक है, अपने आप अपने को एक फीलिंग आती है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये वो नहीं है जो मैं चाह रहा था, यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये जो जोन है वो कंफर्ट जोन नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग? कि मतलब बेचैनी सी होने लग जाना, वो एक प्रॉब्लम है। अब वो बेचैनी आपको जहां पर भी होगी तो आपको लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम बन रही है, ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। लेकिन जब अपन कंफर्ट जोन से लर्निंग जोन में जाते हैं तो भी अपने को वो जोन में जाने में भी अपने को प्रॉब्लम लगती है, तो वो भी एक एक तरह की मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन है। ओके, या जहां पे अपन बोले वेयर वी स्टक स्टक, ओके, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया कि एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है। हमेशा ट्राई करना, कुछ भी समझाना हो तो इंटरव्यू को कुछ भी समझाना हो, तुमको पैनल हो जो सामने बैठा हो, ट्राई करना रियल वर्ल्ड से उसको कनेक्ट करने का। एक बार अगर आप लोगों ने उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया, अगर उसमें आप इजी हो गए, तो आप किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इजी लैंग्वेज में। गॉट इट? ये एक अच्छा तरीका है आप सबके लिए, आप सबके लिए। गॉट इट गाइस? अब प्रॉब्लम है, अब इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो बेसिकली सॉल्यूशंस लेने के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं आप? मतलब कोई भी प्रॉब्लम उठाओ, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी, मतलब लास्ट 12 आवर्स में आपको बेसिकली एक या दो प्रॉब्लम्स हुई होगी, या लास्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी। तो आप मेरे को बताइए कि आप लोगों ने क्या किया था, कैसे सॉल्व किया था। टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फैमिली हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, एक का रिप्लाई आया गूगल। व्हाट अबाउट अदर्स? आप क्या करते हैं? Will things ways to resolve it? Okay. Anything else from anyone else? Ask elders. Okay, that's nice. Take advice from others. Okay.
break it into small parts, think about it, maybe ask an experienced guy in that field. Okay, try, be patient and think about that problem. Okay, तो मतलब आप लोग अलग अलग वे हैं आपके पास, ठीक है। तो बेसिक वेज में बताता हूँ, ठीक है। इधर मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब डेटा साइंस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, कोडिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी, नहीं। लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों को आती है, अपने को भी आएगी आगे चल के, ठीक है, सबको आएगी। सब किसी न किसी प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं पे आएंगे और उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम आई, तो आप देखो कि प्रॉब्लम किस पैरामीटर के बेसिस पे आ रही है। ओके, दिस इज अ वन थिंग कि पैरामीटर्स क्या है, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको अगर अपन ऊपर नीचे करें तो प्रॉब्लम बढ़ेगी और कम होगी। तो वो पैरामीटर्स या वो मतलब इन्हीं पिन पॉइंट्स अपने को टारगेट करने होते हैं। ओके, सबसे पहले वो पिन पॉइंट टारगेट्स हो गए, फिर ट्राई करो कि जो पिन पॉइंट्स और पैरामीटर्स आप लोगों ने फिगर आउट करे हैं उनको अगर आपने निकाल लिया, फिर ट्राई करो वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं। क्यों, अगर पैरामीटर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो प्रॉब्लम की साइज बड़ी होगी, पैरामीटर की वैल्यू कम करेंगे तो प्रॉब्लम की साइज कम होगी। गॉट इट। तो उस कंडीशन में अपने को फिगर आउट करना है कि उस पैरामीटर की वैल्यू को कम कैसे करें, ठीक है, और बिल्कुल मिनिमाइज कैसे करें तो अपनी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। दिस इज अ वन वे। सेकंड, अगर आपको लगता है यार ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, मैं अगर इस बंदे से पूछूंगा या बंदी से पूछूंगा ना तो मेरे को लगता है कि काम हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपको किसी बंदी से बात करनी है या बंदे से बात करनी है, तो आप सोचोगे कि यार मैं अपने बड़ी बहन से पूछ लेता हूँ, वो एक्सपर्ट है, लड़कियों को जानती है, तो ठीक है कि वो बताएगी कि मैं उससे कैसे बात करूं। ओके, गॉट इट गाइस। तो आपने देखा कि एक्सपीरियंस, ओके, एक्सपीरियंस बंदा कौन है जो मेरे को इसमें हेल्प कर सकता है, फिर आप उसके साथ जाके डिस्कस करोगे कि ये प्रॉब्लम है मेरे को। अब आप मेरे को बताओ कि उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों पता है, कोई जान सकता है, कोई बता सकता है मेरे को कि आपको नहीं पता है उनको पता है, ऐसा क्या डिफरेंस है आप में और उनमें, एक्सेप्ट एज। एज का डिफरेंस छोड़ के और क्या डिफरेंस है? एक्सपीरियंस, ओके, उन्होंने ठोकर खाई है, ओके, दैट्स वेरी नाइस, because they have faced the similar problem, already faced the similar situation, experience, okay, learned model, okay, they have been gone through, okay। तो सबके आंसर्स में एक चीज कॉमन आ रही है, बिकॉज दे सफर द सिचुएशन, कि उन लोगों ने ऑलरेडी उन प्रॉब्लम्स को देखा है। अब अपने को एक बात पता है कि अपन प्रॉब्लम्स को कैसे देख सकते हैं, जब तक अपन उन प्रॉब्लम्स को गो थ्रू नहीं करेंगे। एग्री, जब तक मैं उसको फेस नहीं करूंगा तो मेरे को पता नहीं रहेगा कि उस प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व कैसे करना है। ये सबको पता चल गया, ये सबको पता है, ठीक है, गॉट इट। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, क्योंकि अपन हमेशा किसी न किसी के पास जाएंगे नहीं ना पूछने के लिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो अपन कैसे गो थ्रू करें। अब जैसे ये तो सबको पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे अपन नई नई प्रॉब्लम्स देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो अपने को एक्सपीरियंस आता है। अब मेरे को बताओ ये कैसे पॉसिबल है कि कम टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें। टेल मी। कम टाइम में, कम एज में, जो एक्सपीरियंस उन लोगों ने लिया है, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ही है ना, उस एक्सपीरियंस को ही वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हो आपके साथ? टेल मी, एनीवन एल्स। बताइए। Okay, repeat the same action again to again, run for the life goal, break down problems, नहीं नहीं नहीं,
क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया है कि वो 40 ईयर्स के हैं या 35 ईयर्स के हैं, लेकिन आप 25 के ही हो, तो उनके पास जितना एक्सपीरियंस है, ओके, उनके पास जितना एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस आपके पास कैसे आए 25 या 28 की एज में? ये बताइए मेरे को, वो कैसे पॉसिबल? कोई है तरीका? बाय लर्निंग, ओके, वी स्टार्ट फेसिंग दोस प्रॉब्लम अर्लियर, ओके, और स्पीड स्पेंड टाइम विद देम, ओके, ओके, तो रिसर्च ऑन प्रॉब्लम, ओके। अब कल जो अपन ने पढ़ा था ना, उसको मैं यहाँ पे लिंकअप करता हूँ, ठीक है। कल अपन ने क्या चीज पढ़ी थी? डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब किसी के पास कुछ एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कैसे आया? अपन अब रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। एक्सपीरियंस कैसे आया? नॉलेज से। नॉलेज कैसे आई? इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन कैसे आया? डेटा से। तो इसका मतलब है कि उन्होंने इतने टाइम में, इतने समय में इन्होंने इतना सारा डेटा लिया है, इतना सारा डेटा, इतनी इंफॉर्मेशन, इतना नॉलेज, फिर इतना एक्सपीरियंस, क्योंकि नैरो डाउन होता चलता है ना वो। तो अगर आप लोग भी इतना डेटा, ठीक है, अगर आपको वहां तक पहुंचना है कम टाइम में, तो अगर आप इस डेटा को डबल कर दो, सॉरी, ये इस डेटा को इतना डबल कर दो और इसको अगर आप प्रोसेस करने लग जाओ, तो डेटा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, नॉलेज से एक्सपीरियंस। तो इससे ये पता चला कि अगर अपने को उन लेवल तक जाना है, तो अपने को मोर टू मोर डेटा लेके आना पड़ेगा अपने माइंड में, और वो डेटा आएगा तो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज, फिर एक्सपीरियंस। गॉट इट? कंसेप्ट समझ में आया? कैसे लिंकअप हुआ आज का क्लास कल की क्लास से? किसी को कुछ इसमें डाउट तो बताओ, क्योंकि आगे और कनेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए। प्लीज टेल मी, एनीवन? सबको समझ में आया? ओके, श्योर श्योर, आई विल एक्सप्लेन, नो इशू। Okay, then once again I am going to repeat it. जो एल्डर्स हैं उनके पास क्या है बाबा? उनके पास एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? कल अपन ने क्या सीखा था? एक्सपीरियंस आता है नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से आती है? इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? डेटा से। अगर अपन इतना सारा डेटा प्रोसेस करने लग जाएंगे, तो अपने को क्या होगा? डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, इंफॉर्मेशन नॉलेज में, नॉलेज एक्सपीरियंस में। तो क्या होगा? अगर अपन अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करने का, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करने का जो साइज है, ठीक है, वो अगर अपन इंक्रीज कर दें, तो इससे क्या होगा कि कम टाइम में अपने को ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा, और अपन उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा। गॉट इट? फिर अपने को मतलब ज्यादा ऐसा जाना नहीं पड़ेगा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हर किसी के पास कि इसका सॉल्यूशन बता दो, इसका सॉल्यूशन बता दो। ओके, एग्री? अब इसके लिए आप डेटा कैसे लेके आ सकते हो? बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, क्वेरा। ओके, क्वेरा पे जाइए, आपको जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम्स देखिए कि प्रॉब्लम्स को प्रोसेस करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोग बाग क्या अप्रोचेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बेसिक थिंग है जो मैं अभी तक यूज करता हूं। मैं गिटअप पे जाता हूँ, कोडिंग रिलेटेड बता रहा हूँ अभी, ठीक है, फिर इसको लिंकअप करता हूँ। मैं गिटअप पे जाता हूँ, ठीक है, या यूट्यूब पे जाऊंगा, और जो कोडिंग कर रहा होगा ना, 2-2 3-3 घंटे के जो वीडियोस होते हैं ना, वो मैं मेरे टीवी पे लगा देता हूँ और पढ़ने लग जाता हूँ। देखता हूँ कि वो क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया। अब एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस होती है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इस प्रॉब्लम के ऊपर कितनी अप्रोचेस अवेलेबल है, गूगल पे, यूट्यूब पे, गिटअप पे, केगल पे, सब पर, और देखता हूँ कि कैसे लोग बाग उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे को क्या पता चलता है? अप्रोच। एग्जाम्पल कि अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब इसको रियल वर्ल्ड से लेके आते हैं। यहाँ से मेरे को मुंबई जाना है, ठीक है, वन सिटी से सेकंड सिटी, ठीक है, ये एक सिटी है जयपुर, जयपुर से मेरे को मुंबई जाना है। तो मुंबई जाने के तरीके, जब आप बच्चे थे तो आपको क्या पता था?
आपको एक ही चीज पता थी कि पापा के पास मोटरसाइकिल है या एक्टिवा है, उस पर जा सकते हैं। आप फिर बड़े हुए, आपको पता चला कार से भी जा सकते हैं। आप थोड़े और बड़े हुए, फिर आपको पता चला ओ ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। फिर थोड़े बड़े हुए, आपको पता चला कि एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। तो अब इससे क्या पता चला अपने को? प्रॉब्लम तो एक थी, एक प्लेस से सेकंड प्लेस पे जाने के लिए एक प्रॉब्लम है। लेकिन आपको जब बच्चे थे तो आपको क्या नॉलेज कम था, इस बात को बहुत गौर से समझना। आपको नॉलेज कम था, इसलिए आपके पास डेटा कम था, इसलिए आपको एक ही सॉल्यूशन पता था कि मेरे को तो यही पता है बाबा कि मैं जाऊंगा एक्टिवा से, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन एक ही है, सॉल्यूशन तो बहुत सारे, लेकिन आपको नहीं पता है। आपको क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है। डेटा नहीं है तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है तो एक्सपीरियंस नहीं है। बस बात खत्म। जैसे जैसे आप बड़े हुए, जैसे जैसे आपने देखा, ठीक है, फिर उस कंडीशंस में क्या होने लगा, एक चीज पता चलने लगी कि अगर मेरे पास मुंबई जयपुर से मुंबई जाना है तो मैं एक्टिवा से भी जा सकता हूँ, कार से भी जा सकता हूँ, एरोप्लेन, बस, ट्रेन, किसी से भी जा सकता हूँ। ओके, तो ये कैसे पता चला? डेटा से। तो इसलिए आपके पास अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास लैक ऑफ डेटा है। अगर आपके पास लैक ऑफ डेटा नहीं है, आपके पास पर्याप्त डेटा है, तो काम हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट? लिंकअप हुआ? समझ में आया? किस किस को नहीं समझ में आया प्लीज अभी बताइए। आई एम वेरी हैप्पी टू रिपीट इट, आई हैव नो इश्यू। किसी को कुछ भी इसमें लग रहा है कि यार ये तो ऊपर से चला गया, प्लीज टेल मी। को समझ में आया? बाबा इतना सही पढ़ा रहा हूं मैं, मजा आ गया मेरे को तो। मतलब एक्सप्लेन अगेन, ओके। और कोई, किसी को और को कुछ डाउट? एक प्रॉब्लम ली अपने बेसिकली कि मेरे को जयपुर से मुंबई जाना है। आप जब छोटे थे तो आपको नहीं पता था कि कितने वेज होते हैं, आपको जो पता था आपने वही प्रपोज किया कि मैं बोलूंगा कि अपने को ट्रेन से जाना चाहिए, एग्जाम्पल, क्योंकि आपको आपके घर वाले हमेशा ट्रेन से ले गए, तो आपको वही पता था। ठीक है, लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपने देखा ओ बस से भी जा सकते हैं, और ओ फिर आप और बड़े हुए तो आप एरोप्लेन में जाने लग गए, तो आपको पता चला अरे एरोप्लेन में भी जा सकते हैं, ये तो नई चीज है। फिर आपको और पता चला ओ कार में भी जा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, डेटा जो है इंक्रीज हो रहा है आपके माइंड में। डेटा इंक्रीज हो रहा है तो वही जो अपना रूल है, डेटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, नॉलेज से एक्सपीरियंस। तो इसकी हेल्प से आपको पता चल रहा है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कितने नए नए तरीके हैं जिससे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। गॉट इट? तो इसलिए आपको आपको डेटा को प्रोसेस करना है। आप आपके डेटा को प्रोसेस करो आपके माइंड में कि हाँ अब डेटा जितना ज्यादा होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरे को उतनी ज्यादा इजी होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अप्रोचेस होगी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो इनडायरेक्टली अपने को जितना हो सके उतना डेटा को लेके आना है। अब डेटा को कैसे लेके आना है? कोई प्रॉब्लम है, आपको पता है कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अब टेक्निकल वर्ल्ड की बात करते हैं। गूगल सर्च करो, गूगल सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली मीडियम पे, स्टैक ओवरफ्लो पे, क्वेरा पे, आपको ये 3 वेबसाइट्स हैं, उन पे आप जाओगे, आपको पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट बंदे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लिस्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है तो आप गूगल पे जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एक इस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको अप्रोच पता चलेगी, अप्रोच पता चलेगी तो बस डेटा आएगा, फिर डेटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, नॉलेज से एक्सपीरियंस। गॉट इट? यहां तक क्लियर कि अपने को प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है? गॉट इट गाइस? किसी को कोई डाउट? प्लीज आस्क मी, कोई भी डाउट हो बताइए।
सबको समझ में आ गया? सबको? समझ में आया तो यस, थम्स अप। नहीं आया तो थम्स डाउन। ये इमोजी नहीं चाहिए यार, कुछ समझ नहीं आ रही ये इमोजी कौन है। एक ही बंदा है जो ये वाले इमोजीज भेज रहा है। ओके, तो प्रॉब्लम का अपने को पता चल गया, ठीक है। अप्रोच कैसे करना है वो भी पता चला। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अपन गूगल पे देखेंगे तो अपने को ऑलरेडी पता चलेगा कि मार्केट में कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है। ओके गाइस, अब अपन देखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात करें, ओके। लेट मी सी कि कुछ इमेजेस मिलती है तो वो शेयर करने के लिए इजी होगा। सॉल्यूशन इमेजेस, एनी इमेज। प्रॉब्लम है, अपन ने बोला उसके पैरामीटर्स निकालो, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। ब्रेक इट डाउन। आपको कोई गोल भी कंप्लीट करना है उसको भी ब्रेकआउट कर दो, सॉरी ब्रेक डाउन कर दो। गॉट इट? पार्ट्स में, 1 2 3 4, जितने पार्ट्स में कर सकते हो कि आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल, मेरे को 1 प्लेस से 2nd प्लेस तक जाना है। गॉट इट? उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, क्या लगता है आपको? बेसिकली उसमें एक ही चीज होगी ना। मैं पहले जयपुर से, अपने घर से टैक्सी लूंगा, टैक्सी से मैं बैठूंगा ट्रेन स्टेशन के लिए, स्टेशन से मैं टिकट लूंगा, ट्रेन में जाऊंगा, बैठूंगा, फिर मुंबई पहुंचूंगा, फिर मुंबई से टैक्सी लूंगा घर के लिए। ब्रेकडाउन हुआ ना कि मैं पहले टैक्सी में गया, घर में था, घर से टैक्सी, टैक्सी से स्टेशन, स्टेशन से ट्रेन में, ट्रेन से स्टेशन, ठीक है। गॉट इट? गॉट इट? तो अपन ने इसको ब्रेक डाउन किया, तो आपको भी ब्रेक डाउन करना है। अब इसको टेक्निकल वर्ल्ड में समझते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम है, एग्जांपल फिगर आउट करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, पर्टिकुलर क्लास में, काउंट करके, ठीक है। काउंट करके आपको अगर उसको फिगर आउट करना है तो आप डायरेक्ट, एक तो तरीका है कि काउंट कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप 1 बाय 1 सबको बोलोगे कि लाइन से सब 1 2 3 4 बोलने लग जाओ। एक दूसरा तरीका है, तो वो खुद ही बोलेंगे, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो एंड में पता चल जाएगा। अब अगर इसको ब्रेक डाउन करना है तो बॉयज और गर्ल्स को डिवाइड कर दो, फिर पहले बॉयज को काउंट करो, फिर गर्ल्स को काउंट करो, ठीक है। एज वाइज डिवाइड कर लो, तो एज वाले को काउंट कर लो पहले। तो ऐसे अपन उसको ब्रेक डाउन करके काम कर सकते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये तरीका हो गया। ओके, गॉट इट? तो सबसे पहले अपने को यही काम करना है कि प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो, फिर एक एक प्रॉब्लम, जो सब प्रॉब्लम उसमें डिवाइड हुई है उसको अपने को सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व हो गई तो फिर क्या करेंगे, अपन उन सबको एडअप करेंगे और बड़ी प्रॉब्लम जो थी उसको सॉल्व कर देंगे। बेसिक, बहुत बेसिक है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और गूगल तो अपने पास है ही, गूगल पे सर्च करेंगे सिमिलर प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प से अपने को और कुछ पता चलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो क्या लगता है ये प्रॉब्लम किसी ने आई होगी, उसको उसने भी सॉल्व करी होगी, चलो गूगल करते हैं। गूगल करो, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, क्वेरा पे जाओ, मीडियम पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, कहीं ना कहीं तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और फिर उस रेफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि आपको उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है। गॉट इट? यहां तक क्लियर कि प्रॉब्लम क्या होती है, अप्रोच कैसे करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। कोई डाउट किसी को भी, प्लीज टेल मी, आई एम हियर। बताइए।
क्यूए सेक्शन में बताइए, यहां तक क्लियर? और कोई जिसको और किसी को और समझ में आया हो? आई थिंक कुछ 2-4 बंदे ही हैं जो पढ़ रहे हैं, और सब तो रिप्लाई नहीं दे रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज रिप्लाई, क्योंकि ये सेक्शन के बाद फिर दूसरा है। We have 100 plus students. I am getting only 4 replies. थम्स अप कीजिए, नहीं तो या थम्स डाउन कीजिए। ओके चलो, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या था? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो अपन ने लास्ट क्लास में, ठीक है, डेटा के बारे में देखा था, डेटा के टाइप्स देखे थे। ठीक है, अब डेटा टाइप्स कंप्यूटर वर्ल्ड की अगर अपन बात करें तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। क्या बोलते हो? डेटा टाइप्स: इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ओके, बूलियन, और क्या होते हैं, कोई बता सकता है? ठीक है, डबल डेटा टाइप नहीं है, वो किसी भी डेटा टाइप में लग के उसकी साइज को डबल कर देता है, और लॉन्ग भी वही करता है। टपल, ठीक है, टपल एक अरे है, सेट अरे, अरे लिस्ट, सेट, टपल सब अरे है, लिस्ट भी अरे है, लेकिन ये यूजर डिफाइन है। अपन अभी बात कर रहे हैं प्री डिफाइन की, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। लेट मी शेयर। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नन, बूलियन, ओके ओके, नल, ठीक है। तो बिल्ट इन की बात करें तो काफी कुछ आप लोगों को पता है कि क्या होता है। बूलियन, कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर, ठीक है, ये बेसिक है अपने। अब बेसिक तो हो गए, अब यूजर डिफाइन बताइए, कितने यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स है? ओके, अरे, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, क्लास, टपल, स्ट्रक्चर, ओके, और भी नाइस। तो ये हो गए अपने ग्राफ यूजर डिफाइन। ओके, दैट्स वेरी गुड। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में अपन ने एक और कंसेप्ट देखा था, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। याद है सबको? ओके, सबको याद है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अपन ने कंसेप्ट देखा था। ओके, उस कंसेप्ट में अपन ने स्टैक, क्यू सब देखे थे। सबको याद है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? एवरीवन नो?
यस ठीक है, क्या होता है ADT आएगा, मॉडल और अप्रोच, ओके, और उसके अलावा इसकी मॉडल और अप्रोच, efficient way to store the data, okay, logical to store the data, okay, और that's good, that's very good, मतलब ध्यान हो रहा है, बहुत अच्छे से पवन पढ़ रहे हैं, that's very good, clapping to all, very good, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप देखा था अपन ने, ओके, और बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी देखे अपन ने, अल्टरनेटिव approach for user defined data type, ADT we create using built-in data type, got it here। इस कंडीशन में अब अपन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स देखते हैं, अरे लिस्ट टपल तीनों एक ही है, क्योंकि कल अपनी क्या बात हुई थी, लीनियर डेटा टाइप्स, नॉन लीनियर डेटा टाइप्स। लीनियर डेटा टाइप्स मींस जो लीनियर वे में आपके डेटा को स्टोर करेगा। लीनियर वे में डेटा को कौन कौन स्टोर करता है, अरे और स्टैक, क्यू, लिस्ट, टपल, ये सब करते हैं। और नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ। तो ये सब कौन से डेटा टाइप्स है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी हैं और लीनियर और नॉन लीनियर डेटा टाइप्स भी हैं। गॉट इट, क्लियर। अब अगर अपन बात करें कि जो अपन ने, हाँ सर व्हाई डू वी नीड टपल ओवर द लिस्ट एक्सेप्ट फॉर द म्यूटेबल एंड इनम्यूटेबल फैक्टर। म्यूटेबल और इनम्यूटेबल फैक्टर के अलावा कोई रीजन नहीं है कि टपल को लिया जाता है, क्योंकि लिस्ट और टपल में खाली एक ही डिफरेंस है, ओके। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मेरे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, मेरे पास यूजर डिफाइंड है और मेरे पास एडीटी एक अप्रोच है जिसको मेरे को रिजॉल्व करना है या सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, कोई बताएगा? उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को एक कोई भी लीनियर हो या नॉन लीनियर हो वो डेटा टाइप मेरे को एक्सेप्ट करना है। वो कौन सा हो सकता है, अरे, लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, सॉरी स्टैक नहीं है, स्टैक तो एडीटी है ऐसा। तो अरे, लिस्ट, हैश मैप, डिक्शनरी, जो भी आपको करना है, ये सब कंसेप्ट है जो अपने को अप्लाई करने हैं एडीटी को रिजॉल्व करने के लिए या उनको अप्रोच करने के लिए। गॉट इट। अब सबको पता है कि अरे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सीक्वेंस में जाते हैं। रिकॉर्ड और स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर अपन इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, कैरेक्टर्स कुछ भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो C++ में अपन यूज करते हैं। लिस्ट एक डेटा टाइप है पाइथन का जिसके अंदर अपन ने देखा है कि आप मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं। गॉट इट गाइस, यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट तो बताइए। ऑल क्लियर? ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स देखेंगे अपन, ठीक है, जो अपन ने कल देखे थे थोड़े बहुत, इसमें अपन थोड़े एडवांस देखेंगे। कंटेनर, लिस्ट, टपल, एसोसिएट मैप, मल्टीमैप, सेट, मल्टीसेट, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डबल एंडेड क्यू, ग्राफ, ट्री, हीप, ओके, ये सब अपन देखने वाले हैं। जितने देख सकेंगे उतने देखेंगे, जहां पे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा वो अपन नेक्स्ट क्लास के लिए रख देंगे। ओके गाइस, कंटेनर, लिस्ट, टपल, अरे सब एक ही डेटा टाइप है, सीक्वेंस में डेटा स्टोर करने के लिए काम में आते हैं। कब अपन काम में लेते हैं ये सब ध्यान रखेंगे
कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये प्रॉब्लम थोड़ा लीनियर डेटा टाइप्स को है, लीनियर डेटा टाइप की बात आई, अपने को लीनियर डेटा टाइप उठाने हैं, नॉन लीनियर में जाना ही नहीं है, बात हो गई खत्म, अपने को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। गॉट इट? यहां तक क्लियर? इस चीज को अपने को बहुत अच्छे से देखना है कि फिगर आउट कर सके अपन कि यहाँ पे लीनियर डेटा टाइप लगेगा कि नॉन लीनियर। जैसे ही लीनियर का पता चलेगा अपन लीनियर पे चले जाएंगे, नॉन लीनियर का पता चलेगा नॉन लीनियर पे चले जाएंगे। गॉट इट? ठीक है। अब नेक्स्ट, कंटेनर हो गया, अरे हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी एक डेटा टाइप है जो C++ में एसोसिएट अरे के नाम से जाना जाता है, हैश मैप के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल अगर अपन उसको देखें मैप के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यहां तक क्लियर? गॉट इट? तो इस कंडीशन में अपन क्या देखेंगे कि अपने को एक और डेटा टाइप मिला है जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो एक डिक्शनरी है। अब मैप बोलो, हैश मैप बोलो, ठीक है, हैश मैप और मैप में कुछ एक फंक्शन का डिफरेंस होता है, वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन कंसेप्ट सेम है, की और वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा सेव होगा। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। गॉट इट? अब मल्टी मैप क्या होता है? तो मल्टी मैप एक्चुअली एक ऐसा डेटा टाइप है जो क्या करेगा, आपके एक की के ऊपर, वैसे क्या होता है डिक्शनरी में एक की है, उसके ऊपर दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज नहीं आ सकती है। ठीक है, एक की के ऊपर एक ही वैल्यूज आएगी, उस कंडीशन में आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। मल्टी मैप का मतलब है एक की के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज आदि है, उसको बोलते हैं मल्टी मैप। ओके, अब सेट की बात करें तो सेट अगेन एक लीनियर डेटा टाइप है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रख सकते हो, आपको कंटिन्यूसली कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी, कोई भी वैल्यूज रखोगे, लेकिन अगर वहां पर रिपीटेटिव वैल्यूज आ गई तो आप उसको एंटरटेन नहीं कर पाओगे, आपको वो हमेशा के लिए एक ऐसी वैल्यूज देगा जो वहां पे यूनिक है, तो उसको बोलते हैं अपन सेट। और मल्टी सेट में क्या होगा, आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी रख सकते हो। गॉट इट? एग्जाम्पल अपन देखेंगे, टेंशन मत लो, हर चीज का एग्जाम्पल देखेंगे, पहले एक बार थ्योरी समझ लो। ओके, बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि थ्योरी पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पढ़ना, जितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ना है। स्टैक क्यू अपन ने कल देख लिया था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, स्टैक के फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, क्यू अगेन एक डेटा स्ट्रक्चर है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में सेव होगा। डबल एंडेड क्यू यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से आपको यूज में आएगा। ट्री नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और हायरार्की डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, हीप एक टाइप ऑफ ट्री है। ग्राफ जो ग्राफ के कंसेप्ट के ऊपर काम करता है, जो नोड्स और सारे जो एजेस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्री एंड ग्राफ। गॉट इट? यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, जब तक मैं एडिटर ओपन कर लेता हूं, आप सोचिए। Sure, I am going to share you the content that I am sharing with you. Okay guys, no worry about it. अब अपन देखते हैं वन बाय वन डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, we know once the screen is visible to you all, visible?
तो लिस्ट की बात करें तो अपने को पता है कि ये लिस्ट होती है, इसको अगर प्रिंट करना है तो मैं कुछ ऐसे कर दूंगा। डिक्शनरी की बात करें तो ये कुछ डिक्शनरी होती है अपनी, ओके। अब अगर मैं टपल की बात करूं तो ये मेरी टपल है, आप देख सकते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे डाली थी वो नहीं आई। लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गई, टपल हो गया। अरे अपन इसी को ही बोलते हैं, अगर मैं इसमें मल्टी वैल्यूज पुट कर दूं तो मेरा काम वैसे भी हो जाएगा। सॉरी, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन ये लगा देते हैं तो थोड़ी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। गॉट इट? ऑल क्लियर टू ऑल? ओके, लेट्स सी मल्टी मैप। ओके, यहाँ पे अपने को मल्टी डिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ए पे मैंने ए रख, 1 पे ए, बी पे बी, 1 पे भी बी, सी पे ये, ठीक है। प्रिंट करते हैं, मल्टी मैप इज नॉट डिफाइंड, ओके। फ्रॉम मल्टी ओ मल्टी डिक्ट, ओके। लेट मी चेक, इंपोर्ट चल जाता है तो इसमें, ओके। वेट, ओके। सी, लाइब्रेरी अपन इंपोर्ट करी, कलेक्शन, उसमें डिफॉल्ट डिक्ट, इसको मैंने लगाया ए बी सी। अब A1 पर बी, ए और बी दोनों आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2 पे सी है। लेकिन सेम कंडीशन अपन इसके साथ नहीं रख सकते हैं जब अपन मैप को यूज करते हैं, तो ये मल्टी मैप का वे है। अब दिस इज अ वन वे, देयर आर सो मेनी अदर वेज आर देयर, with the help of that we can implement the multi map in the Python. Got it? Got it, guys?
क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? ओके, नाइस। अपन ने सेट देख लिया, अब अपन देखेंगे मल्टी सेट। Again, multi-set is not working. ओके, तो एक कोड है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा इसमें, ठीक है? तो मल्टी-सेट क्या होता है? मल्टी मैप हो गया, मल्टी सेट हो गया। अब अगर अपन स्टैक और क्यू की बात करेंगे तो वही है कि अपन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अरे, लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं। ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन लिंक लिस्ट, पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं, और हीप और ग्राफ को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन उनको यूज कर सकते हैं। गॉट इट गाइस? एनी डाउट? एवरीवन गॉट इट? किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। गाइस कुछ डाउट है तो बताइए। पाइथन में ट्री कैसे होगा? वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा पाइथन में ट्री विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। और अगर आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि पाइथन में पॉइंटर्स बाय रेफरेंस, जिसको अपन बोलते हैं, वो बाय डिफॉल्ट ही चलते हैं। तो इसलिए एवरीथिंग इन द पाइथन बाय रेफरेंस ओनली। ओके, तो आप ट्री को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसमें। Importing things from terminal, I couldn't get it. इंपोर्ट करने का मतलब है कि कहीं और से कोई लाइब्रेरी है जो बनी हुई है, उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। दैट्स द सिंपल वन। और कुछ डाउट्स? अब किसी का कोई मैसेज है असाइनमेंट के लिए, तो सून आपको एक असाइनमेंट मिलेगा 1-2 दिन में, तो वो आपको कंप्लीट करना रहेगा। पहले वाला सबने कंप्लीट करके गिटअप पे डाल दिया है? बेस्ड ऑन जो जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उन सब के ऊपर मिलेगा। और कुछ हो तो बताइए। मशीन लर्निंग जब स्टार्ट होगी तो अपन वैसे भी सब कुछ VS कोड पे ही देखने वाले हैं, या पाईचार्म पे देखेंगे, या जुपिटर नोटबुक पे देखेंगे। ओके, नो वरी अबाउट इट।
अभी बेसिक चीजें हैं, तो इसलिए अपन ऑनलाइन आईडी पे देख रहे हैं। अदरवाइज देयर शुड बी गोइंग थ्रू द जुपिटर नोटबुक, पाइचार्म और वीएस कोड, और मेजरली आधी ज्यादा चीज अपनी जुपिटर नोटबुक पे ही होगी। बताइए किसी का कुछ डाउट? असाइनमेंट किस किस का हो गया? रिप्लाई नहीं दिया किसी ने। अगर सबका हो गया है तो गिटअप पे अपलोड कीजिए, बताइए, क्योंकि नेक्स्ट असाइनमेंट फिर हमको देना है आपको। तो ट्राई करो खत्म करने का, क्योंकि अपने को जल्द से जल्द इसको खत्म करना है। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग स्टार्ट होगी, तो फिर उसमें आपके असाइनमेंट्स काफी सारे आने वाले हैं ऐसा। और अभी एक बात बताइए कि किस किस के एग्जाम्स चल रहे हैं, चैट में लिखिए अगर एग्जाम है तो आपके। ओके, नाइस, गॉट इट, गॉट इट। ओके गाइस, देखते हैं फिर असाइनमेंट फिर उस हिसाब से ही रखेंगे कि आपके एग्जाम भी इम्पेक्ट नहीं करे। गाइस चलो, ओके, एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ द अगस्त। ओके, ठीक है फिर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। कुछ डाउट्स हो तो डिस्कॉर्ड पे अवेलेबल हैं हम और हमारी पूरी टीम। आप आराम से पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट्स है। सून आपके साथ नेक्स्ट असाइनमेंट शेयर कर दिया जाएगा, सो प्लीज बी रेडी। Okay guys, let me share with you the Discord link. This is this not a Discord link. This is a Discord link and previous class के जो sessions आपको देखने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। Okay? Okay guys, bye, take care, bye to everyone. I think no one is saying bye today. कुछ क्वेश्चंस पोल के आए हैं, प्लीज रिस्पॉन्स दैट वन। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है तो प्लीज लेट अस नो, so we can increase the quality of the class and the content.
Okay guys, bye, take care, thanks for your time, thank you so much.